بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیزم اور اسلام کے معجز ساتھیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ذکر کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا ہی ذکر ہے؟ کیا تصور صرف ایک کلپنا ہے یا یہ دل کو رب سے جوڑنے کا راستہ ہے؟ اور کیوں صدیوں سے صوفیاء اکرام ذکر، تصور، مراقبہ اور چلا کرنے کو روحانی سفر کی منزلیں بتاتے آئے ہیں؟ ساتھیوں، یہ پورا بیان میرے پیر و مرشد حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی کے علم تصوف کی تحریر ہے۔ آج ہم اس حقیقت کی بات کریں گے جسے قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، کون سا ہے، کیسے ملے گا؟ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی فرماتے ہیں، یہ راستہ ذکر سے شروع ہوتا ہے اور معرفت پر ختم ہوتا ہے۔ ساتھیوں، ذکر صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے رٹتے رہنا ذکر نہیں ہے۔ ذکر کا اصلی مطلب ہے دل کو اللہ کی یاد میں جگہ دینا۔ جب انسان دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ انسان صرف ایک کلمہ توحید نہیں بولتا بلکہ ایک اعلان کرتا ہے۔ اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی معبود ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ دنیا کا ہر انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے، مگر کوئی دولت میں، کوئی شہرت میں، کوئی رشتوں میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے سکون صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ یعنی جس دل میں ذکر نہیں وہ دل بے چین رہتا ہے، اور جس دل میں ذکر ہے وہ ہر حال میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ تصور کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی فرقانی پیر مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ تصور وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے رب کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شخصیت کو دل میں محسوس کرتا ہے تو وہ تصور کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا آئینہ ہے۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ رحمان ہے۔ کیا ہے؟
आईनाए रहमान है, यानी जो उस आईने को पहचान ले वह अपने रब की पहचान की तरफ बढ़ जाता है। और अब जानते हैं चिल्ला क्या है और चिल्ला क्यों किया जाता है। चिल्ला नफ्स की सफाई के लिए किया जाता है। सूफिया के यहाँ एक मशहूर अमल है जिसे चिल्ला कहा जाता है, लेकिन चिल्ला सिर्फ 40 दिन बैठने का नाम नहीं है। नफ्स को तोड़ना, दिल को साफ करना, कुरान कहता है व अकीमुस्सलाता व अतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं ज़कात सिर्फ माल की नहीं होती, नफ्स की भी ज़कात होती है। जब इंसान अपने अंदर की बुराइयों को निकाल देता है, जैसे घमंड, गुस्सा, नफरत और लालच जैसी तमाम बुराइयों को जब दिल से निकाल देता है तो दिल एक साफ आईना बन जाता है। और जब दिल साफ हो जाए तो उसमें नूर उतरता है। अब आते हैं मुराकबा पर। मुराकबा रूह की बेदारी के लिए है। मेरे अजीज साथियों, मुराकबा वह हालत है जब इंसान अपने रब की मौजूदगी महसूस करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। इसी को हदीस में एहसान कहा गया। मुराकबा रूह को जगाने का अमल है ताकि इंसान दुनिया में रहते हुए भी रूहानी परवाज हासिल कर सके। इसलिए सूफिया एक मशहूर हदीस बयान करते हैं, मुतु कब्ल अंता मुतु, यानी मरने से पहले मर जाओ। मतलब यह कि अपने नफ्स को अपने काबू में कर लो ताकि रूह जिंदा हो जाए। सूफिया इकराम की नमाज का राज और नमाज का असली मकसद। साथियों, बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज का राज नहीं जानते, नमाज का राज नहीं समझते। कुरान कहता है वह अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं नमाज का मकसद सिर्फ हरकतें करना नहीं है, बल्कि दिल को अल्लाह के सामने हाजिर करना है। इसीलिए एक मशहूर हदीस में कहा गया, ला सलातु इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, यानी दिल की हाजिरी के बिना नमाज नहीं। जब दिल हाजिर हो जाए तो इंसान नमाज में एक अजीब सुकून महसूस करता है। और अब आते हैं मारिफत की ओर। मारिफत इंसान क्या है? मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं सबसे बड़ा राज इंसान खुद है। एक मशहूर हदीस कुदसी में आता है, अल इंसान सिर्री व अनासिर रहू, यानी इंसान मेरा राज है और मैं उसका राज हूं। मतलब यह है कि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो वह अपने रब की पहचान की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया मारिफत इंसान मारिफत इलाही का दरवाजा है। और अब चलते हैं असल तौहीद की तरफ। हकीकत तौहीद क्या है? मेरे साथियों, मेरे अजीजों,
तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं है बल्कि एक रूहानी एहसास है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वह जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसने किसी को जना। यानी अल्लाह एक है, वह बेनियाज है, न वह जना गया है, न उसने किसी को जना है, और उसका कोई हमसर नहीं, यानी उसका कोई सानी नहीं। फिर कुरान में एक और जगह फरमान है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही पहला है, वही आखिरी है, वही जाहिर है, वही बातिन है। यानी जहां भी देखो उसकी निशानियां मौजूद हैं, उसकी निशानियां हैं। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं हर सू वही जलवागर है। तो साथियों, जिक्र, तसब्बुर, मुराकबा और चिल्ला, ये सब अलग अलग रास्ते नहीं है, ये सब मिलकर एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, कुर्बे इलाही की तरफ। जब इंसान दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत समझ लेता है तो दुनिया की हर चीज से उसका दिल हट जाता है और वह जान लेता है अगर कोई हकीकत मौजूद है तो बस वही है। और इसी को मेरे पीरो मुर्शिद इश्क की आखिरी मंजिल कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हक मौला अली अलैहिस्सलाम, हक अहले बैत अलैहिस्सलाम, हक मौला सय्यदी फुरकानी पीर मद्दे जिल्लहुल आली।